चाहे वेट रील्स के अंदर। Shall we आगे चलो। shall we contact our somewhere on the become technical. स्टोरेज से आगे बढ़ते हुए अब हम लोग चलते हैं ग्रामेज वेरिएशन पे, और मैं फिर से विप्लव भाई को रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने प्रेजेंटेशन को आपके सामने रखें। পেপারের গ্রামেজ ভেরিয়েশনস এই সাবজেক্টে যাওয়ার আগে আজকের এই মিটিংয়ে যারা উপস্থিত আছেন তাদের কাছে আমি একটা প্রশ্ন রাখছি যে আমাদের মধ্যে কজন মাল কেজি হিসাবে বিক্রি করেন আর কজন পিস হিসাবে বিক্রি করেন। আমি প্রথমে রাখছি যারা কেজি হিসাবে বিক্রি করেন তারা যদি দয়া করে হাত তোলেন যে আপনারা কেজি হিসাবে মাল বিক্রি করেন। कॉस्टिंग बिक्री बोल लेते तो हाँ सही। nobody says তো দেখা যাচ্ছে যে কেউ কেজি হিসেবে আমরা কেউ বিক্রি করি না, কিন্তু আমরা মালটা কিনছি কেজি হিসেবে, আর আমরা যখন মালটা বিক্রি করছি পিস হিসেবে। সুতরাং আজকের এই প্রতিযোগিতামূলক বাজারে গ্রামেজ ভেরিয়েশনসের একটা মস্ত বড় ভূমিকা আছে। সেটা আমরা যারা কস্টিং করি বা আমরা যারা হিসেব করি তারা তো নিশ্চয়ই খুব ভালো করে অনুধাবন করতে পারি, কিন্তু যারা ফ্লোরে আছেন, যারা টেস্ট করেন, যারা পরীক্ষা করেন, গ্রামেজ দেখেন, কপ দেখেন, ময়েশ্চার দেখেন, তাদের কাছে আমার অনুরোধ, কারণ আপনারা কিভাবে পরীক্ষা করছেন তার উপর কোম্পানির লাভ লোকসান অনেকটাই নির্ভর করছে। কারণ ধরুন আজকের কিছুদিন আগেও আমাদের একটা অ্যাসোসিয়েশনের মিটিং এ আলোচনা হচ্ছিল যে গত 5-6 মাস কোনো পেপার মিল ঠিক গ্রামেজের মাল দিতে পারছে না। বাস্টিং স্ট্রেংথের ব্যাপারে নেই, যখন যেহেতু আমি এটার মধ্যে নেই, আমার সাবজেক্ট নয়, সেই জন্য আমি বলছি না। গ্রামেজ ভেরিয়েশনস প্রচুর থাকছে। আমরা যখন কস্টিং করি, ধরুন 100 গ্রাম যদি হয় আমরা 100 গ্রাম ধরেই কস্টিং করি, বা 120 গ্রাম যদি হয় 120 গ্রামের ওপরই কস্টিং করি। কিন্তু মূলত দেখা যাচ্ছে যে আজকের এই ভ্যারিয়েশনে 100 গ্রামের মাল আমার দেখা 109 গ্রাম থেকে আমি 118 গ্রামও পেয়েছি। বা 120 গ্রামের মাল 120 গ্রামের জায়গায় 130 গ্রামও পেয়েছি। সুতরাং পেপারটা এলে পেপারের কি গ্রামেজ হয় সেটা কিন্তু ঠিক করে দেখে নেওয়া সবচেয়ে বড় কাজ। সেভাবে যদি কাজ করতে হয় তাহলে ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে ধরে নিয়েই মোস্ট অফ দি ক্ষেত্রে, অবশ্য আমি এটা আমার অভিজ্ঞতার কথা বলছি, আমি যে কটা মিলের সঙ্গে কাজ করি তার পরিপ্রেক্ষিতে কথা বলছি, এটা কিন্তু সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নাও হতে পারে। সেখানে ধরুন আমি 2-3টে মিলের সঙ্গে কাজ করি, সেখানে আমি ধরেই নিই, কারণ আমার এখানে যে কটা রিল আসে প্রত্যেক কটা রিলের, যে কোনো রিলের কি রিল নাম্বার, তার কি বাস্টিং স্ট্রেংথ, তার কি গ্রামেজ, তার কপ কত, তার ময়েশ্চার কত, টোটাল চার্ট আমার কাছে আছে। সুতরাং আমি দেখে নিয়েছি গত 6 মাসে, যে আমি ধরেই নিয়েছি আমি সবসময় হায়ার জিএসএম এ পাচ্ছি মাল। সেখানে হায়ার এবং লোয়ার কম্বিনেশনে যদি মিক্স আপ করে একটা অ্যাভারেজ করা যায়, অ্যাভারেজ অর্ডার করা যায়, ধরুন 120 গ্রাম 120 গ্রামের সঙ্গে আমার যদি 100 গ্রামের স্পেসিফিকেশন থাকে বা 110 গ্রামের স্পেসিফিকেশন থাকে, সেখানে 120 গ্রাম বা 80 গ্রাম নিয়ে, কারণ আমি ধরেই নেব যে 120 গ্রামের মালটা আমি 130 গ্রাম বা 125 বা 126 বা 127 গ্রাম পাবো, এবং 80 গ্রামের মালটাও 90 গ্রাম বা 85 গ্রাম বা 86 গ্রাম পাবো। সেখানে যদি দুটো মাল কম্বিনেশন করে করা যায় তাহলে মনে হয় সাবস্টেন্স গেইন আমাদের কিছু হতে পারে। অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদের যে রিকোয়ার্ড যে কোয়ালিটি সেটাও আমরা মনে হয় পেয়ে যাব। আর এফসিবিএম এর সঙ্গে পেপার মিলের কিছু আলোচনা হয়েছে বিভিন্ন সময়।
আমরা আগে যে কোনো মিলকেই বললো বলে 5% প্লাস মাইনাস ভ্যারিয়েশন তো অ্যালাউ করতেই হবে আপনাকে, কিন্তু আপনারা চিন্তা করে দেখুন বা আমিও বলছি যে আমরা কিন্তু কখনো ভ্যারিয়েশন চিন্তা করে কস্টিং করি না। আজকের দিনে আপনি যদি মনে করেন যে 100 গ্রামের জায়গায় আপনি 105 গ্রাম ধরে নিয়ে আপনি কস্টিং দেন কোনো আপনার বায়ারকে, সে কিন্তু আপনাকে কাজ দেবে না, সে বলবে আপনি তো 5% বেশি ধরে বসে আছেন। তাহলে আমরা কিন্তু অ্যাকচুয়াল 100 গ্রাম অ্যাকচুয়াল যে গ্রামেজ যা স্পেসিফাইড থাকে তার উপরই আমরা কস্টিংটা করি। সেক্ষেত্রে মিল এফসিবিএম কে বিভিন্ন মিল, কিছু মিলের যে রিপ্রেজেন্টেটিভ এসেছিলেন এফসিবিএম এ, তারা বলেছেন যে এটাকে 5% না করে তারা চেষ্টা করবেন যে প্লাস মাইনাস 2.5% এর মধ্যে রাখতে। আমাদের এখানে যে মালটা আমরা কিনি, আমরা কেজি হিসাবে ধরুন 100 গ্রামের জায়গায় যদি 120 গ্রাম পাই মালে, আমাদের 100 গ্রাম অনুযায়ী যে কোয়ান্টিটি অফ বক্স, যে সংখ্যায় বাক্স পাওয়া উচিত ছিল সেটা আমরা পাই না, সেখানে কিন্তু আমাদের অনেক লোকসান হয়ে যায়। আমরা কিন্তু কেজি হিসেবে পয়সাটা দিয়ে দিই, কিন্তু বিদেশে কি হয়, ওখানে স্কোয়ার মিটার হিসেবে বা লিনিয়ার মিটার হিসেবে লেংথের দিকে কি হয় সেই অনুযায়ী পেমেন্ট করা হয়। আমি আমাদের অ্যাসোসিয়েশনকে বলবো বা এফসিবিএম কে অনুরোধ করব যে তারা যদি মিল রিপ্রেজেন্টেটিভদের সঙ্গে এই ব্যাপারে একটু আলোচনা করেন যে এটাকে গ্রামেজ ভেরিয়েশনস যখন হচ্ছে, যেটা কিছুতেই কন্ট্রোল করা যাচ্ছে না, সেক্ষেত্রে স্কোয়ার মিটার বা লিনিয়ার মিটার হিসাবে রিলগুলোকে আমাদের দেয়া সম্ভব কিনা, যেটা বিদেশে সবসময় এটা মেনটেন হয়ে আসছে, সেটা আমাদের ক্ষেত্রেও সম্ভব হয় কিনা, এটা এফসিবিএম কর্তৃপক্ষ বা ইকমার তরফ থেকে যদি মিলের যারা রিপ্রেজেন্টেটিভ আছেন বা মিল যারা ডাইরেক্ট তৈরি করছেন বা তাদের যারা ডিলার্স আছেন তাদের সঙ্গে বসে যদি এই ব্যাপারটা আলোচনা করে নেওয়া যায়, তার একটা যদি কোনো সিদ্ধান্ত বেরোয়, আমার মনে হয় প্রত্যেকেই আমরা উপকৃত হব। আর আগেই যেটা বলছিলাম যে ধরেই নিচ্ছি যে আমি 150 গ্রামে থাকলে, আমি 150 গ্রাম বা 140 গ্রামে থাকলে আমি হায়ার জিএসএম এ পাবো, সেখানে অর্ডার করার সময় 150 গ্রামের জায়গায় 140 বা 120 জায়গায় 110, কারণ সেখানে আমাদের কুশনিং থাকে, বাট এভার দ্য পার্সেন্টেজ 4, 5 হোক 6 হোক, সেখানে কুশনিংটাকে কিছুটা আমার মনে হয় আমরা মেকআপ করে উঠতে পারবো। সুতরাং যদি আমরা রিকোয়ার্ড গ্রামেজের তুলনায় একটু লোয়ার গ্রামেজে অর্ডার করি, তাহলে আমার মনে হয় সেই কুশনিংটা আমরা পেয়ে যাব। আর আগেই যেটা বলেছিলাম যে কম্বিনেশন করে ইউজ করলে সেখানে কিন্তু আমরা সাবস্টেন্সে 2 থেকে 2.5% এর একটা বেনিফিট আমরা পেতে পারি। সেই ব্যাপারটা যদি আপনারা চিন্তা করেন, আমার মনে হয় গ্রামেজ ভেরিয়েশনস এর দিক থেকে যে লোকসানটা আমাদের হয় সেটা আমরা কিছুটা মিনিমাইজ করতে পারব। विप्लव ने जो अभी कहा कि कॉम्बिनेशन करके हम लोग यूज करें तो बेनिफिट होगा, अवश्य होगा। इसके साथ ही यदि हम लोग अपने कस्टमरों को एजुकेट कर सकें कि वे मटेरियल स्टैंडर्ड स्पेसिफाई न करके परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड पर बक्सा लेवे, तो हम लोग काफी बचत भी कर सकते हैं और हम लोगों का मटेरियल का स्टॉक काफी मिनिमाइज हो सकता है, जिससे कि हम लोग किस ग्रामेज के कॉम्बिनेशन से बक्सा बनावें कि अपने को बस्टिंग स्टैंड, कंप्रेशन स्टैंड या पंचर स्टैंड जो उन्होंने स्पेसिफाई कर रखा है वो मीट कर सकें। और विदेशों में ऑलरेडी ज्यादातर कस्टमर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड बेसिस पर परचेज करने लग गए हैं। अब हम लोगों को भी अपने कस्टमरों को एजुकेट करना चाहिए, इससे उनको भी लाभ होगा, क्योंकि सेम परफॉर्मेंस अपने कम मटेरियल यूज करके भी दे सकते हैं और अंत में उनको ही लाभ होगा, किंतु अपने भी प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ सकता है, प्रोडक्शन बक्सा का भी बढ़ सकता है और कुछ प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है। इसके बारे में भी अपने को चिंता करनी चाहिए। वैलिड पॉइंट आरजी साहब, तो जीएसएम वेरिएशन पे कोई और कुछ कहना चाहेगा? When we say plus minus 5%, it means whether the result of one lorry instead of 100 GSM can it come to 105?
When we say plus minus 5% means individual readings can vary. But I have ordered for 100 GSM. The mean average has to come to 100. But You see, neither I can take the benefit of 5, nor my meal can take the benefit of 100 GSM. Can they deliver me all readings 105? And they say yes, it is within plus minus 5. গুপ্তাজি ঠিক আছে, এই কথাটা আপনি যেটা বলছেন সেটা খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু আমি আমার I want to know what is the prevalent in the trade. You see, well, we are part and parcel of the same family. What is prevalent? So, you see, let me tell you, if all the readings come 105, I would not like to pay for that drill. If all come 105, if average comes, acceptable. What is prevalent in the trade? What others are doing? I would like to share my experience with my fellow colleagues. Hello. The prevalence, what we shall say, a paper trade customs, in other side we say the ISI acceptance. Trade says, and the ISI says, a plus minus 5% is the acceptable limit. That could not be a ground for any claim or a rejection thereof. Now, assuming what we are trying to say, that we have ordered 100 grams, and some reels comes 105, so some other reels should also come 95. Or in a sense, some reels come 97, so some other reels should be also of 103. No. Here it is very, very explicit. The acceptance is plus minus 5%. It can come all the way for 105, it can come all the way for of 95, and that could not be a ground for rejection of the pay. That is the custom, that is the trade practice, that is the acceptance limit. Now, as we do sell, when we means we are not selling the in kg, so we obviously feel that we are the loser. How do we overcome? The gentleman, it has no short answer. The answer lies to the discussion. We had a forum last at the Madras, following at the Bangalore, and if this house also agrees and gives the mandate, there is a possibility of further discussion with the paper mill associations. Friends, there are more than 6 or 7 paper mills associations. They do agree or they may not agree. Then it comes to boils down that what they can agree. Some of the newer mills did agree, plus minus 2.5% or a 3%. What we like, but when we go down to a cheaper variety of the papers, down, it's difficult because it's made on a machine which is quite second-hand machines. So this is a perennial problem, and we are one of the victim of that. But how to come out? Education will bring us, the forum will bring us out, and we do write FCBN. And if this house agrees, we do write to them that okay, we will go for 2.5% plus or minus. Here, gentlemen, we on our own should put our house in order. Now, we should not have, if like a library brings 80 grams, 90 grams, 100 grams, 110 grams, 120 grams, 140 grams, 150 grams, 165 grams, 180 grams, 200. Now, as far as I do have, when I run down the mill myself, do we know, shall we know, the mill runs like this? A 10-20 tons you run 110 grams, 30 tons you run 100 grams, then 20 tons you run 120 grams. we have to believe ourselves, nothing else. Only marking changes. This is our own thing. If we decide, I think now the mill itself is deciding, if I am correct, that they are going out of 80 grams and 90 grams. If the house decides, no, we need 100 grams only, 120 grams only, 140, 150, 180, 200. No in between. Slowly, slowly, this can go to their mind, and here you can catch plus minus 5%. Gentlemen, let me tell you very clear, 140 grams and 150 grams, no mill runs. They run only 145, that's all.
एक में लेबल लगा दिया 140 का, बाकी वहाँ 150 लगा दिया, चलो छोटी। That's the end of the day. Anup, I think we should also persuade the mills कि वो linear meter bills में mention करे। दादा कैसे चेक करेगा पहले बता। No, we will not check. What I'm saying is, first of all, when you are mentioning something, आप अगर एक तो चीज कुछ mention करते हो, तो आपका एक ethical question साथ में there is a question of ethics being given by, let us say, mill A, when he says in your challan or in the excise invoice or whatever, it's a 400 kg reel, की reel chart में 400 kg reel linear meter, so many meters. There is a question of ethics involved. Now we can also calculate whether that linear meter, gives you 400 kgs, or back calculate that, that 400 kgs equals to that linear meter or not, and then you can see your production and find out. It is not that immediately you will know, but when you see your production over a period of time, then you will definitely know whether that meal is cheating you or not. That is, at least if the mention is there, if the linear meter is mentioned, as Biplab said, abroad people actually don't buy paper in linear meters, they buy in tons, but the linear meter is also mentioned. चलो, good point, Mr. Narinder. जब बाहर मुझे कुछ लोग मिले थे। अच्छा, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ, जैसे कि अभी अपने GSM वेरिएशन के बारे में बात कर रहे थे, अपने यहाँ ऐसा भी होता है कि जो रील विड्थ जो हम लोग ऑर्डर करते हैं उसमें भी शायद 2-1 मिलीमीटर प्लस साइड में ही आता है, तो वो भी एक वेस्टेज एक फैक्टर है जो कि हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। मिल के नोटिस में लाना चाहिए हमें। बाहर कुछ लोग मिले थे मुझे जमशेदपुर से आए हुए, तो उन्होंने कहा कि भाई हम लोग तो बंगाली समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप लोग अगर हिंदी में बोलो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो स्पीकर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अगर हिंदी में बोले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हमारे सब्जेक्ट्स इतने एग्जॉस्टिव है कि अगर हम लोग एक पॉइंट्स पे इतने डिस्कशन करेंगे तो शायद ये सेशन 9 बजे तक चलेगा। एनीवे, नेक्स्ट पॉइंट के लिए बुलाना चाहूँगा जोरदार तालियों के साथ श्री RJ अग्रवाल साहब को। उनका सब्जेक्ट है एक्सेस मॉइस्चर एंड कॉप। सर्वेश्वर, कैन यू हैव द प्रेजेंटेशन ऑन एक्सेस मॉइस्चर एंड कॉप? नमस्कार। अपने को ये जानना है कि मॉइस्चर कितना क्राफ्ट पेपर में होना चाहिए, जबकि मिल ने क्राफ्ट पेपर डिस्पैच किया। आप में से कोई बोलेगा कि कितना क्राफ्ट पेपर अपने एक्सपेक्ट करते हैं मिल से जब मिल डिस्पैच करती है? एग्रो बेस्ड पेपर जब अपने ले रहे हैं उसमें कितना मॉइस्चर मिल को देना चाहिए जो कि एक्सेप्टेबल लेवल है, अपने कितना एक्सपेक्ट करते हैं? 6%। और कोई बोलना चाहेगा? सुब्रतोदा? 7%. I think 8% is reasonable because most of the craft paper that we are using is from Agrobase, which has a very short fiber length. So anything less than 8% may lead to cracking during corrugation, because most of us, or I think all of us, none of us, have the steaming system in the corrugation. Before putting it into the corrugation, we don't have the steaming system. If we do have the steaming system, then this cracking can be avoided. But since we are talking in general, that most of us don't have the steaming system, then at least 8% is required for the Agrobase paper that we are using before corrugation. Thank you. When the mills are dispatching, that is the standard. अब अपने मॉइस्चर में 3 चीजें है, कितना परसेंट मॉइस्चर होना चाहिए और इस मॉइस्चर का वेस्टेज पर अपने कोरुगेटिंग इंडस्ट्री में क्या इफेक्ट है, और इस वेस्टेज को मिनिमाइज करने के लिए अपने को क्या करना चाहिए। ये 3 विषय हैं जिन पर मैं एक
के बाद एक प्रकाश डालूंगा। अब परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर के बारे में ऑलरेडी अपने निर्णय कर लिया कि 7 से 8% के बीच में मॉइस्चर जब डिस्पैच करती है मील तो होना चाहिए। किंतु अपने को यह भी मालूम है कि पेपर हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल है नेचर में, इसलिए वह जब मील से डिस्पैच होता है और अपने तक पहुंचता है उसके बीच में भी मॉइस्चर एब्जॉर्ब या डी एब्जॉर्ब कर सकता है ह्यूमिडिटी के अनुसार या क्लाइमेटिक कंडीशन के अनुसार। और ये रिसर्च से प्रूव हो चुका है कि एक्सेसिव ह्यूमिड क्लाइमेट में मॉइस्चर पेपर में 22% तक भी जा सकता है। ये फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 1962 में एक सर्वे किया था, उसमें उन्होंने ये प्रूफ किया। नेक्स्ट स्लाइड। इस मॉइस्चर का अपने पर क्या असर होता है? अपने जब पेपर मिल ज्यादा मॉइस्चर देकर पेपर भेजती है, क्योंकि अपने प्रोडक्ट पर केजी पर नहीं बेचते हैं, अपने पर पीस बेसिस पर बेचते हैं, तो पेपर का कंजम्पशन बढ़ जाता है, अपना इनडायरेक्ट वेस्टेज है वो। यदि ज्यादा मॉइस्चर पेपर में है तो वार्पिंग और डीलेमिनेशन कोरुगेटेड बोर्ड में जरूर होगा, और यदि मॉइस्चर कम है तो क्रैकिंग होगा, वो भी वेस्टेज, कोरुगेटेड सील वो भी वेस्ट हो जाएगी। और यदि ज्यादा मॉइस्चर है बक्से में तो अपना कस्टमर उसको रिजेक्ट कर देगा, एंड दैट विल आल्सो लीड टू मोर वेस्टेज। नेक्स्ट स्लाइड। अब इस वेस्टेज को कैसे मिनिमाइज किया जाए? अपने मील से जिस तरह अपने ने निर्णय किया कि मील जब पेपर डिस्पैच करती है तो 7 से 8% के बीच में ही मॉइस्चर रहे, ये अपने को इंश्योर करना चाहिए। और केवल मॉइस्चर पर ही ध्यान देने से नहीं होगा, अपने को ये भी देखना पड़ेगा कि कॉप वैल्यू पेपर का 35 से 40 के बीच में ही है, नहीं तो पेपर ज्यादा से ज्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब या डी एब्जॉर्ब ह्यूमिड क्लाइमेट में ज्यादा से ज्यादा करेगा, और उससे अपने पेपर मशीन पर चलाने में भी ज्यादा तकलीफ आएगी। अब यदि मॉइस्चर को किस तरह कंट्रोल किया जाए तो अपने को कोरुगेटिंग मशीन पर या तो फ्री हीटर के द्वारा उसको कंडीशनिंग करनी होगी, या मॉइस्चर कम है तो शावर के थ्रू पास करके उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, जिससे कि कन्वर्सन के समय कम से कम वेस्टेज हो। और जो अभी अपने पहले के स्पीकरों ने भी इस बारे में कहा है कि अपने को क्राफ्ट पेपर इंसिस्ट करना चाहिए कि स्क्वायर मीटर बेसिस पर परचेज करें, ना कि केजी बेसिस पर, जिससे कि अपने पानी का पैसा मिल को न देना पड़े और अपना कंजम्पशन अपने हाथ में रहे। थैंक यू। और किसी को कुछ कहना है इस बारे में तो आमंत्रित हैं। ठीक है। यदि प्रेसिडेंट साहब ने मेरे को बुलाकर कहा कि सुनील बहुत फुटेज खा रहे हो यार तुम, जरा जल्दी करो। एनीवे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लूज वाइटिंग एंड ओपन स्प्लाइस। इसके लिए मैं फिर मिस्टर मिलन कुमार जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना प्रेजेंटेशन दें।
লুজ ফাইন্ডিং তো করোগেটিং মেশিন যারা চালায় ওরা অনেক বেটার সেটাতে হ্যান্ডেল করতে পারে। ব্রেকটা টাইট করে লুজ ওয়াইন্ডিংটা দ্যাট ক্যান বি টেকেন কেয়ার অফ। লুজ ওয়াইন্ডিং এর জন্য আলাদা করে ওয়েস্টেজ যে অতটা হয় বলে আমি মনে করি না, কারণ লুজ ওয়াইন্ডিং এর জন্য যদি ওই করোগেটিং মেশিনে ব্রেক টাইট করে দিয়ে চালানো হয় তাহলে ওই টেনশনটা ইট টেকস কেয়ার অফ দ্যাট প্রবলেম। আর ওপেন স্প্লাইস ডেফিনেটলি সেগুলোকে যতটা ওই পার্টিশন আর মেবি টপ প্লাই লেভেল প্রিন্টেড লেভেলের জন্য যদি ইউজ করা যেতে পারে, যদি সাইজটা ইয়ে হয়। আর যদি খুব ছোট কাট হয় তাহলে আমি অনেক সময় দেখেছি করোগেটিং মেশিনে ওটা চলে যায়। যদি কাটটা খুব ছোট হয় তাহলে it is manageable in the corrugating machine only. So, thank you, Virendra. That was very short and sweet. Sarveshwar, can we have the next slide, please? बस क्या है, do we check the size of reels received? यानी कि साइज रील्स के हमारे पास कभी कभी बड़े आ जाते हैं और वह एक लॉस का विषय है। दूसरा है, डू वी चेक द वेट ऑफ रील्स रिसीव्ड? हमारे घर में जो 15 टन की गाड़ी आती है, अगर वो 15 टन लिखते हैं तो 15 टन है या नहीं वो हम लोग चेक करते हैं या नहीं, टेयर वेट करवाते हैं या नहीं। और तीसरा पॉइंट है, कई बार मैं देखता हूँ कि कॉर्पोरेशन में रील्स चल रही है तो उसमें एक स्ट्रिप पेपर का निकलता जाता है कंटिन्यूसली। अगर हम देखते हैं कि कोई 300 kg की रील है और 15 kg वैसा निकल जाता है तो मोरलेस 0.5% वेस्टेज वहाँ हो जाता है। कई बार निकल जाता है 15-20 kg, 5% हो गए हैं। थैंक यू अनु भाई। तो ऐसा कई बार देखा गया कि स्ट्रिप्स निकलता है। वो तो ओरिजिनल हमारे ओरिजिनल पेपर में किसी बिल्कुल। चलिए, इसके साथ ही हम लोग अपने पहले सेशन के पहले टॉपिक के एंड में आते हैं, पेपर रिलेटेड। और मैं जो समअप करना चाहूँगा इसको, मुझे जो लगता है कि अनलोडिंग और स्टोरेज ये विषय हमारे कंट्रोल का है, और बाकी के जो 4 इश्यूज थे, कोर एंड रैपर्स, ग्रामेज वेरिएशंस, एक्सेस मॉइस्चर एंड कॉप और लूज वाइंडिंग, इसमें हमें मिल वालों को रिक्वेस्ट करना चाहिए कि वो कुछ करें। तो मैं हमारे प्रेसिडेंट साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज कराएं मिल वालों से, FCBM या ICMA लेवल पे, या इस तरह का कुछ सुझाव मेरा है, अगर आप कुछ कहना चाहें इस पे। थैंक यू सर। Can I say something? Yes sir. Mic please. I don't need a mic. Unfortunately, I can't speak Hindi because I have no control on Hindi like my wife, you know. Can I speak in English or in Bengali? বাংলায় বলছি। আপনাদের এখানে দুজন FCBM এর পাস্ট প্রেসিডেন্ট রয়েছেন। আমি FCBM এর সঙ্গে প্রাগৈতিহাসিক যুগে খুব ভালোভাবে জড়িত ছিলাম, কিন্তু আমার আশ্চর্য লাগছে যে শেষের যে 3টে পয়েন্ট নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম সেগুলো সবই পেপার মিলের প্রবলেম আমাদের নয়, মানে কনভার্টারদের নয়, কিন্তু আলটিমেটলি কনভার্টারদের পয়সা দিতে হচ্ছে। FCBM কি করছে? FCBM একটা সময় পেপার মিলকে পা ধরতে শিখিয়েছিল। They fell on our feet. We compelled them to stick on to a price. We refused to give them the increase. So I think there should be a very strong national dialogue between the paper mill and the FCBM. I have my friend Anubhai here, Satish is here, both are past president of FCBM, and they are aware what FCBM was about the time that I'm talking about. So some action should be made by our federation to see that the paper mill behave in maintaining the quality and maintaining the standard at all levels. So I would suggest that this house should take a sort of a decision to request FCBM to impress on the paper mills, or to see that the paper mills are cornered between the walls. Thank you. Well said, sir. I think this should be a topic of our discussion in the next managing committee meeting, and we should forward a proposal to FCBM. ये नोट हमें भेज देना चाहिए अभी।
इसके बाद में और कहना चाहिए कि ये जो मीटिंग हो रही है सितंबर में करीब 19-20 को, तो उसमें कम से कम बॉम्बे में हो रही है, तो वेस्टर्न मिल्स, गुजरात मिल्स को आमंत्रित किया जाए कि वहाँ इस सब्जेक्ट को फिर जैसे हम लोग ने साउथ में किया था। वो दिल्ली मीटिंग में टेकअप किया जा सकता है। हाँ जी, You see, only. ऐसा है, I tell you there's a slight change in the situation since the time Mr. Ghosh is talking about. When Mr. Ghosh is talking about, there were only 8 or 10 large mills making craft paper, and it was easier to have some sort of a dialogue with them at the federation level. Now, none of those 8 or 10 mills are making craft. It's now been fragmented, and we are having craft supplies from regional levels, and there may be at least 200 or 300 mills. So I think this, from the federation, we should take it up through the associations at the regional levels. Yes, sir. Calcutta, who are the dealers or the distributor. Can the meeting not be arranged between the distributors and the corrugators so that the distributors can create a pressure on the mill? I think, Anurag, would you like to say something? shall we say, see, it's not a regional issue. Until the issue is taken on an all India level with a federation body and the respective the paper mills association. Now, as my friend Satish has told, and as my friend Mr. B.N. Ghosh told, we have gone back 30 years back, and we had an Indian Paper Makers Association and Indian Paper Mills Association. Then they had a combined body which is called a Joint Paper Committee. It was easier to talk. Now that mills, whatever the 6 or 7 sisters, are already out from the craft mill. Now we have what mill? All India non-conventional paper mill manufacturers, agro-based paper manufacturers, waste paper manufacturers, small paper manufacturers, and the last in the list, right now, we have become a 2 section under the northern mills, which is one is the Uttaranchal side, which is the Himachal Pradesh side, and which is a non-Himachal Pradesh side. So that is a new issue. But we do request, or shall we request the Federation, while calling Western mills as well as the Northern mills to that forum of our next managing committee, and let's do some kind of talking. Somewhere, something, someday, we will hit somewhere. Thank you. Thank you, Anu bhai. With this, we come to our next topic. Can we have the next slide? Planning related. Planning related is something, मतलब ये ऐसा कुछ है जो कि हम लोग शायद अपने ऑफिस में बैठकर करते हैं. इसमें ना हमारे फ्लोर लेवल वालों की कोई गलती है और ना ही पेपर मिल वालों की गलती है. हम लोग शायद जो प्लानिंग करते हैं या जो नहीं करते हैं उस कारण से जो लॉस होते हैं वो यहाँ डिस्कस होंगे. इसका पहला टॉपिक है ओवररन्स. इसके लिए मैं जोरदार तालियों के साथ हेमंत जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना प्रेजेंटेशन दें. Can we have the slide on overruns? सुनील जी मेरे को इतनी देर से कह रहे थे भैया टू द पॉइंट बोलना, बहुत लंबा खींच रहा है, अपने को काफी पॉइंट्स कवर करने हैं. ओवररन्स या शॉर्ट रन्स, अपना एम होना चाहिए कि जो भी ऑर्डर है राइट क्वांटिटी अपने बनाएं. सपोज अगर कोई अपना कस्टमर या एक्सपोर्टर 100 बॉक्सेस का ऑर्डर देता है और अपने लोग 110 बनाते हैं तो 10% सीधा ही वेस्टेज हो गया कि वो तो लेगा नहीं. अगर 90 बनता है तो वो पूरा प्रोसेस दोबारा दोहराओ तो मेरे ख्याल से उसमें तो 15-20% हो जाएंगे, जो तो 10-5 किलो लगना तो कोई बड़ी बात है नहीं. तो इस विषय में मेरे को यही बोलना है कि अपने को ये किस तरह अपने चेक करें कि बॉक्स जितना अपने चाहें उतना ही बने. एक तो अपने पास उपाय है कि कोरुगेशन मशीन में अपने मीटर लगाएं, लेंथ काउंटिंग मशीन. तो लेंथ काउंटिंग मीटर होने से अगर हम रोल बनाते हैं तो हमें पता रहता है कि हम कितना लेंथ बना रहे हैं, तो हम एग्जैक्ट क्वांटिटी पे आ सकते हैं. या अगर हम लोग ऑनलाइन काटते हैं
तो अपने लोग मैनुअल कटर या ऑटोमेटिक कटर दोनों में अपने मीटर लगा के रख सकते हैं, काउंटिंग मीटर, इलेक्ट्रॉनिक काउंटिंग मीटर, जो अपने को एग्जैक्ट बताता रहेगा कि अपने को कितनी शीट काटनी है। इसके अलावा अपने कुछ अगर शीट ज्यादा बन भी जाती है तो वो वेस्ट नहीं हुई जब तक वो बॉक्स नहीं बना है। तो मेरा ये सजेशन है कि अगर अपने को कोई भी प्रोग्राम लेना हो, अपने उससे कुछ कम बनाए और लास्ट में एक रोल बना ले। तो जो भी अपने को शॉर्टफॉल पड़ती है, पर वो शॉर्टफॉल पता कैसे चलेगी, उसके लिए अपने को एक सेंसर मीटर पेस्टिंग में लगाना चाहिए, ताकि अपने को ये पता रहे कि अपने लोगों ने कितना बोर्ड पेस्ट किया है। अगर अपने को ये पता चल जाता है कि अपने लोगों ने इतना बोर्ड पेस्ट किया है और अपनी इतनी शॉर्टफॉल है, तो अपने हाथों हाथ उस रोल से काट के वो बॉक्स को कवर कर सकते हैं। तो इसके अलावा अपने जो अपनी जनरली फैक्ट्रियों में नहीं हो रहा है कि अपने ऑपरेटर्स और लेबर्स को ये नहीं बताते हैं, जॉब कार्ड नहीं देते हैं, तो बेचारे अंधेरे में रहते हैं। अगर अपने उन्हें जॉब कार्ड दें, उसमें पूरा प्रोग्रामिंग लिखा रहे कि कितनी टू प्लाई काटना है या कितने लेबल टॉप शीट के लिए काटना है या कितनी प्रिंटिंग करनी है, तो उससे भी काम काफी इजी हो सकता है। तो अगर अपने जॉब कार्ड या तो जॉब कार्ड दें या उनको राइटिंग में प्रोग्राम दे कि भैया ये 100 पीस ही कटेगा या जो भी क्वांटिटी है वही कटेगा, तो इससे अपने एक्सेस या शॉर्ट रन के जहमत से बच सकते हैं। और जानता हूं मैं भी कि अपने कुछ भी करें, कुछ ना कुछ तो एक्सेस बनेगा ही, शॉर्टफॉल तो हो नहीं सकता क्योंकि उसको तो देना ही है कस्टमर को। तो अगर जो भी अपने एक्सेस बनता है, अपने को यही चेष्टा करनी है कि उस बॉक्सेस या लेबल्स को फिटमेंट या प्लेट में यूज करके एग्जॉस्ट करें और अपनी फैक्ट्री की वेस्टेज मिनिमम करें। थैंक यू। थैंक यू हेमंत जी। कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन या कोई सजेशन? चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। स्लो मूविंग पेपर, रॉन्ग साइज, सतीश कपूर साहब, जोरदार तालियां। अभी आपने सुना होगा, अभी आपने हेमंत जी से सुना ही है कि अपने पास ये प्रॉब्लम हो जाती है कि जब पेपर बच जाता है। अब एक बात और होती है कि फर्ज करिए हम लोग के पास एक ऑर्डर आया है जिसमें कि हम लोग को 530 केजी हमको पेपर चाहिए खाली। अब मिल तो आपको 530 केजी देगी नहीं, अगर 300 केजी का वो रील है तो आपको एक रील या दो रील तो लेनी ही पड़ेगी, तो 600 किलो तो आपको लेना ही पड़ जाएगा उसमें। तो उसमें आपको क्या है कि कुछ बच जाता है। अगर ये ऑनगोइंग साइज रहता है तब तो ये ठीक है कि आपको नेक्स्ट टाइम चल जाएगा, और अगर नहीं रहता है तो आपके पास में ये कागज बचा रह जाता है। अब ये कागज अगर आपके पास में अगर 5-6 महीना रह गया तो इसमें इसका फाइनेंस कॉस्ट जो होता है ये एक कॉस्ट बढ़ जाती है इससे। तो इसको अपने को ये देखना चाहिए कि कोई छोटे साइज में भी अगर होए तो उसका वेस्टेज ले करके अपने को कर लेना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि आपका एक 6 महीने का पेपर रह जाता है आपके स्टॉक में, तो आपका वो पेपर की क्वालिटी भी डिटोरिएट हो जाती है, खराब हो जाती है, और आपको उस पर कॉस्ट भी पड़ जाती है। ये देखते हुए आपको ये देखना चाहिए कि अगर आपको लगता है कि ये 6 महीना पेपर आपके पास पड़ा रह जाएगा, तो आपको अगर 2-4 इंच का वेस्टेज जाता है तो ये आपको खत्म कर देना चाहिए। और जहाँ तक होए इसको आपको थोड़ा प्लानिंग करनी चाहिए कि अगर आपके पास 8-10 इंच का बच जाता है, फर्ज करिए आपके पास कुछ ज़्यादा बच जाता है, तो वो जो 8-10 इंच की रील जो बच जाती है वो आप और किसी काम में ले सकते हैं, जैसे फिटमेंट का काम हुआ उसमें आप उसको इस्तेमाल कर लें। तो उस तरीके से आपका कुछ वेस्टेज की कटौती हो सकती है। या अगर आप इसको और चीज़ों में भी आप कर सकते हैं, जैसे कि अगर 7 प्लाई का बक्सा है तो उसमें आप छोटे छोटे बोर्ड के पीसेस अंदर दे करके उसको भी आप उसको उस तरीके से अपनी वेस्टेजेस को आप सेविंग कर सकते हैं उसमें। बहुत बढ़िया सतीश साहब। कोई कुछ पूछना चाहेगा या कहना चाहेगा? सतीश साहब, नेक्स्ट सब्जेक्ट भी आप ही का है, डेकल एडजस्टेड पेपर। ऐसा है कि मिल हमेशा चाहती है कि उनका पूरा डेकल कवर हुए। अब उनका डेकल कवर करने में क्या होता है कि अपना जो रिक्वायरमेंट है कागज का, तो वो कितनी दफ़े मैच नहीं करता है। तो हम लोगों को कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम लोग को ऊंचे साइज का रील लेना पड़ता है। तो ये एक तरह का अपने ऊपर वेस्टेज आ जाती है
इसको अपने को हर हालत में बचाना चाहिए। तो इसको इस तरह से बचाया जा सकता है कि या तो अपने एजेंट से, जो बिल का जो एजेंट है उसको बात करी जाए कि वो और किसी कॉम्बिनेशंस में दूसरे के रिक्वायरमेंट्स के साथ उसको मैच करके कवर कर लिया जाए उसके थ्रू, या उसका जो ऑफ कट है वो उसको बोला जाए कि आप इसको बेच दीजिए। अगर अपने को अगर 1-8% देना भी पड़े अगर उस पर, तो वो सहूलियत रहती है बजाय कि अपने ऊपर भी उस पर वो रखा जाए। और जैसे मैंने पहले कहा था कि अगर छोटा साइज का लेना ही पड़ जाए तो आपको उसको ऑफ कट में आप उसका आप वो फिटिंग्स में यूज करिए आप। और जैसे पहले भी कहा गया था कि अपने को एक स्टैंडर्डाइज कर लेना चाहिए ग्रामेज वेट भी। तो उससे क्या होता है कि मिल्स को भी मालूम पड़ता है कि भाई 100 ग्राम है, 120 है, 150 है, तो वो उनके पास भी उसी तरह के ऑर्डर ज़्यादा आएंगे, तो उसमें उनको भी सहूलियत हो जाती है डेकल मैच करने के लिए। अगर वो 4 ग्रामेज वेट पे अगर हुए तो उनको सहूलियत रहती है। अगर वो 4 ग्रामेज की जगह 8 ग्रामेज वेट पे हुए तो उनको प्रॉब्लम रहता है उसको कवर करने के लिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये है कि अपने फेलो कॉर्पोरेटर्स लोगों से बात कर लेनी चाहिए कि अगर आपका ये साइज में लगता हो तो आप इस साइज का कर लीजिए, हम इस साइज का ले लें, तो इस तरीके से ये करा जा सकता है। और एक बात और भी है, अपने एसोसिएशन लेवल में एक रील बैंक भी बन सकता है, जैसे कि अपने ये बोला जा सकता है कि हमारे पास में इस ग्रामेज वेट का ये साइज का इतना पेपर एक्स्ट्रा है, किसी को अगर वो चाहिए तो वो उस तरीके से उनसे एक तरह से वो एक्सचेंज आइडियाज करके वो एक्सचेंज के लेवल में करा जा सकता है, उससे सहूलियत हो सकती है। कपूर साहब ने बहुत बढ़िया पॉइंट निकाला है, रील बैंक। गुप्ता जी जरूर कुछ कहेंगे इस बारे में। गुप्ता जी ने कुछ एक्सरसाइज भी किया था शुरू में, कुछ इंटरनेट वगैरह पे। We failed, I tell you, we cannot survive. Everyone has some reels extra. I tell you, I have some reels which I could not use for 1 year, maybe 6 months. गुप्ता साहब हिंदी में। मेरे पास ऐसी बहुत सी रीलें हैं जो मैंने साल भर काम में नहीं ली या 6 महीने काम में नहीं ली। आज मैं सुबह से 30 इंची का माल खोज रहा था, मैंने 2 जगह फोन किया। मैं 2 जगह फोन कर सकता हूँ जहाँ मेरी रोज बात हो, बट आई कांट हर किसी को तो फोन नहीं कर सकता। बट अभी बहुत जरूरत है अपन सब लोग मिलके एक एजेंट को डेजिग्नेट करें। मैं आपका रील बैंक को आप आगे बढ़ा रहा हूँ, हम लोग एक एजेंट को डेजिग्नेट करें, ही इज द रील एजेंट, रील बैंक एजेंट। हम लोग को जिसके पास जो एक्स्ट्रा हो वो उसको लिखा दे, और जिसको चाहिए 2 रील, 1 रील, 3 रील, तो उससे बात कर ले, और हम लोग उसको 8 किलो का कमीशन भी दें, तो भी विल सेव lakhs of rupees देगा। बिल्कुल ठीक बात। गुप्ता जी अगर 8 पैसा देते हो तो मैं तैयार हूँ एजेंट बनने को। सर 51 पैसा और 50 टन साल का बिजनेस। मैं तैयार हूँ सर। अरे 50 टन साल का बिजनेस साल का। एसोसिएशन अनु भाई बोलते हैं कि हमारे ऑफिस से भी हो सकता है, एसोसिएशन ऑफिस से। Yeah, it is possible. It is possible. Now we have an office. We have got a man who understand paper. कंप्यूटर भी है। जब R&D सेंटर की बात ही चली है तो मैं चाहूंगा कि आरती साहब हमारे R&D सेंटर के बारे में कुछ कहे आपसे। जैसा आप लोगों को सबको विदित है कि अब अपना R&D सेंटर एसोसिएशन का 1 वर्ष से ऊपर हो गया, चालू हो गया है। मर्लिन लिंक्स एसपी मुखर्जी रोड में वो चालू है, और इस 1 वर्ष के दौरान काफी मेंबरों ने और नॉन मेंबरों ने भी इसका लाभ उठाया है, और टेस्टिंग कम से कम 300 टेस्ट अपने 1 वर्ष के दौरान हुए हैं, और पक्के सर्टिफिकेट मिल रहे हैं, और प्रत्येक हम लोग पीरियडिकली कैलिब्रेशन भी अपनी मशीनों का करवाते हैं, और वहाँ पर आप लोग मेंबर या नॉन मेंबर जो भी हैं वो वहाँ पर विजिट करके देखें कि वहाँ पर किस तरह काम हो रहा है और किस तरह मशीन को मेंटेन किया जा रहा है। तो आप लोग एक बार कम से कम वहाँ जाएं और देखें, तो क्या होगा कि आप लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा काम में लेने की चेष्टा करें, और अपने कस्टमरों को भी कहें कि यदि कोई को टेस्ट में किसी को कुछ
कमी मालूम पड़ती है तो वहीं से टेस्ट करावें, तो अपना एसोसिएशन का लैब ज़्यादा से ज़्यादा काम में आवेगा। और मैं इस साथ में अपने जो मेंबर भाई हैं उनको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने और भी जो कोरुगेटर भाई हैं जो एसोसिएशन के मेंबर नहीं हैं उनको भी अपने फोल्ड में लावें, जिससे कि अपनी एसोसिएशन ज़्यादा से ज़्यादा यूनाइटेड होकर अपने लैब को भी काम में लाएं और अपने एसोसिएशन के द्वारा अपने मेंबरों के लिए काफ़ी काम भी हुए हैं। जिस तरह पहले अपने सेल टैक्स 12% था अपने प्रोडक्ट पर, आज एसोसिएशन के कारण ही आज अपना सेल टैक्स 4% पर आया है। इसके